Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the continue statements in loops. So in last lecture we have studied about the break statement. So the break statement and this continue statement, both the statements must be used in loops, and those statements are called as the jumping statements in loop. So firstly consider this continue statement. What is actually the use of continue statement? So this continue statement is always written in any loop. So of course it may be the for loop or while loop or the do while loop. So consider this is the for loop and in between here it is the continue statement. So if this continue statement is encountered in the loop, then control will go to the loop again for the next iteration and some number of statement will be skipped. अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो लूप के बीच से ही, ये लूप यहाँ से लेके तो यहाँ तक है, these number of statements are there in loop, but after executing the continue statement some of the statements will be skipped and control will again go to the for statement or again go to the loop for the next iteration. यानी अगर कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता है कंट्रोल बीच में से ही फिर से लूप पे जाएगा और आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम के लिए इंक्रीमेंट करेगा. सो दिस इज द यूज ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट. सो ऑफ कोर्स दिस कैन बी यूज्ड इन फॉर स्टेटमेंट or it can be used in while statement or in the do while statement also. So why to use this continue statement? क्यों यूज करना है हमको कंटिन्यू स्टेटमेंट? सो देयर मे बी मेनी कंडीशंस वेयर यू हैव टू स्किप सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और सम पार्ट ऑफ द लूप एंड इन बिटवीन यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट इटरेशन. कंसिडर करो, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी जॉब के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आए हैं. कंसिडर करो 100 एप्लीकेशंस आर देयर फॉर i इक्वल्स टू 1. सो 100 एप्लीकेशंस का डेटा मैं इनपुट कर रही हूँ, लेकिन वहाँ तो कुछ तो भी क्राइटेरिया है. सपोज कंसिडर करो कि क्राइटेरिया शुड बी द टोटल मार्क शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू, सो टोटल मार्क शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 600. सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द जॉब. So in this loop, suppose I have 100 applications. So I have to process all the 100 applications. So there should be loop for I is equals to I less than equals to 100. So I'll be inputting the name, date of birth, then marks and so on. So here should be the condition. So here should be the condition that if total is less than 600, that candidate will not be eligible for the interview, or that candidate will not be the eligible for job. So if this condition, that is if total is less than 600, अगर उसकी टोटल जो भी है, मार्क्स की टोटल जो भी है, if it is less than 600, then I will print the message you are not eligible for the exam or you are not eligible for the job, and after that continue. So continue means मुझे क्या करना होगा, अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसका पूरा डेटा इनपुट करना होगा. So that means if the criteria is not satisfied, then control will again go to the loop and he will process or the computer will process the next application. But if this criteria is false, that means if total will be greater or equals to 600, then continue will not be executed and the afterwards whatever the processing of the application will be done here. सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें मुझे क्या करना होता है, कंटिन्यू यूज करना होता है. सो लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल फॉर द यूज ऑफ दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट. सो दिस इज द प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट. एक्चुअली आई हैव यूज्ड बोथ द स्टेटमेंट्स हियर, ब्रेक एज वेल एज द कंटिन्यू स्टेटमेंट. So this program is used to calculate the square root of inputted numbers. सो यूज़र जो भी नंबर्स एंटर कर रहा है उसके स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोग्राम है. लेकिन हमको पता है कि स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द निगेटिव नंबर्स.
सो अगर यूजर निगेटिव नंबर एंटर करता है तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं हो सकता है. सो मे बी देयर मे बी द एरर इन द कंपाइलर और इट विल प्रोड्यूस द erroneous आउटपुट. इट विल नॉट प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट. सो ऐसे एक्चुअली यहाँ पे एक लूप यूज किया है. सो दिस विल बी द एक्चुअली कंटिन्यूअस लूप और द इनफाइनाइट लूप while 1. So 1 will always be true. So that means this loop will be continuously executed, but I have broken the loop for the condition if the inputted value is 0. So यानी ये लूप तभी ब्रेक होगा जब यूजर क्या एंटर करेगा, 0 एंटर करेगा तो. सो यहाँ पे वो ब्रेक स्टेटमेंट भी हमने यूज कर लिया है. सो सो फर्स्टली कंडीशन इज ट्रू, कंट्रोल बी इनसाइड द लूप, मैसेज आएगा एंटर नंबर और 0 टू एग्जिट, ऐसे मैसेज आएगा. सो दैट यूजर विल नो दैट he have to enter the 0 to exit from the program. सो मैसेज आने के बाद में यूजर कुछ तो भी वैल्यू एंटर करेगा. सपोज यूजर एंटर्स द वैल्यू 13 और यूजर एंटर्स द वैल्यू 25. सपोज एक्स की वैल्यू यूजर ने एंटर कर दी 25. सो 25 इक्वल्स टू 0 नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. 25 लेस देन 0 ये भी नहीं है. सो ये भी नहीं है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे. नीचे वाला स्क्वायर रूट इक्वल्स टू SQRT ऑफ 25 दैट इज 5.0 विल बी डिस्प्लेड. सो ये हो गया एक नंबर के लिए. फिर से ऊपर जाएगा कंट्रोल, अगेन कंडीशन इज ट्रू, फिर से मैसेज आएगा एंटर अ नंबर और 0 टू एग्जिट, फिर से नंबर एंटर करेगा. सपोज मैंने नाउ एंटर कर दिया 36, यूजर की एक्स की वैल्यू एंटर कर दी 36. दिस कंडीशन इज फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो प्रिंट कर देगा स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 6.0. फिर से अंदर, फिर से ऊपर गया, फिर से कंडीशन ट्रू है. सो एंटर अ नंबर. सपोज अब यूजर ने एंटर कर दिया -10. सो निगेटिव वैल्यू एंटर कर दी. सो -10 इक्वल टू 0 नहीं है, -10 लेस देन 0 यस, कंडीशन इज ट्रू. सो कंडीशन इज ट्रू, देयरफॉर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए. सो प्रिंट करेगा इनवैलिड नंबर एंड कंटिन्यू. सो जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल विल बी अगेन टू द लूप, क्योंकि मुझे अगर निगेटिव नंबर है तो स्क्वायर रूट निकालना नहीं है. सो अगर नंबर निगेटिव है तो मैसेज आ जाएगा इनवैलिड नंबर और फिर से ऊपर जाएगा और नया नंबर एंटर होगा. सो दैट मीन्स इफ यू वांट टू स्कीप सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम फॉर सर्टन कंडीशन देन यू हैव टू यूज द कंटिन्यू स्टेटमेंट. जैसे मुझे निगेटिव नंबर है तो मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना नहीं था. सो इसलिए मैंने निगेटिव नंबर के लिए क्या कर दिया, कंटिन्यू, यानी फिर से लूप पे जाएगा, फिर से नंबर एंटर होगा. अगर सपोज फिर से निगेटिव वैल्यू एंटर होती है, सपोज मैंने दे दिया -5, सो -5 इज अगेन लेस देन 0, फिर से इनवैलिड नंबर होगा, फिर से नया नंबर एंटर करेगा. सो यानी ये प्रोग्राम में अगर पॉजिटिव नंबर आते हैं तो ही स्क्वायर रूट डिस्प्ले होगा और अगर निगेटिव नंबर एंटर होता है तो इनवैलिड नंबर बोलेगा और नया नंबर फिर से एंटर करेगा, न्यू नंबर. एंड दिस विल बी कंटिन्यूड, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा जब तक कि यूजर 0 एंटर नहीं करता है. सो अगर मैंने 0 एंटर कर दिया सो 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज ट्रू, हेंस कंट्रोल विल बी आउट ऑफ द लूप. सो हियर इज द लूप, हियर इज एंड ऑफ द लूप. सो ब्रेक यानी कहाँ आ जाएगा, आपके लूप के बाहर. सो इन दिस वे यू कैन यूज द ब्रेक स्टेटमेंट एंड द कंटिन्यू स्टेटमेंट in the loops as per your requirements. So let us run this program now. So this is the program which I have just explained you. So let us run the program and see how it works. So a message is there at enter number or 0 to exit. Suppose I enter the value 56. So now x becomes 56. 56 equal to 0 नहीं. सो नीचे आएगा 56 लेस देन 0, ये भी कंडीशन फॉल्स है. ओके तो स्क्वायर रूट इक्वल्स टू SQRT ऑफ 56 विल बी डिस्प्लेड. ओके ये प्रिंट होने के बाद में फिर से ऊपर जाएगा, फिर से मैसेज आएगा एंटर अ नंबर एंड 0 टू एग्जिट. सो सी हियर,
सो स्क्वायर रूट डिस्प्ले हो गया, एंटर अ नंबर और 0 टू एग्जिट. सपोज नाउ आई एंटर द वैल्यू सपोज 25. सो फिर से x की वैल्यू 25 दे दी. 25 जीरो नहीं है, 25 लेस देन जीरो नहीं है, तो स्क्वायर रूट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी डिस्प्लेड, दैट इज 5.0 इज डिस्प्लेड. नाउ एंटर नंबर, फिर से ऊपर गया, एंटर नंबर और 0 टू एग्जिट. सपोज नाउ आई एंटर द वैल्यू -45. सो -45 x की वैल्यू -45 एंटर कर दी. -45 इक्वल्स टू 0 नहीं, -45 लेस देन 0, येस, नाउ द कंडीशन इज ट्रू. सो मैसेज आएगा इनवैलिड नंबर एंड कंटिन्यू, यानी यहाँ से कंट्रोल फिर से कहा जाएगा आपके लूप पे, फिर से एंटर अ नंबर और 0 टू एग्जिट प्रिंट होगा. सो सी हियर इनवैलिड नंबर इज डिस्प्लेड एंड एंटर नंबर और 0 टू एग्जिट. सो फिर से अगर निगेटिव वैल्यू देती हूँ तो फिर से वही इनवैलिड नंबर प्रिंट करेगा और नेक्स्ट नंबर पूछेगा. यानी अगर आप पॉजिटिव देते हो तो स्क्वायर रूट प्रिंट होता है, निगेटिव वैल्यू देते हो तो इनवैलिड नंबर बोलता है. ये अब चलता रहेगा जब तक कि आप वैल्यू 0 नहीं एंटर करते हो, क्योंकि दिस इज द इनफाइनाइट लूप. वाइल 1 यानी कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू ही होंगी. सो कंडीशन ट्रू ही होंगी, लेकिन लूप में से बाहर तो जाना ही होता है. उसके लिए हमने टर्मिनेटिंग कंडीशन दी है कि x इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ आई विल एंटर वैल्यू 0 एंड प्रेस एंटर. सो सी, सो x की वैल्यू 0 दे दी. सो 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन विल बी ट्रू एंड ब्रेक स्टेटमेंट विल ब्रेक द लूप, और यहाँ से कंट्रोल डायरेक्टली लूप के बाहर जाएगा, यानी मेन फंक्शन के क्लोजिंग ब्रेस पे. So this will be the end of the program. So this is how both the statements, that is break and continue, will work in loops. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.